नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय साइप्रस दौरा पूरा हो चुका है। यात्रा पूरी कर पीएम मोदी G7 बैठक में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंच गए हैं। साइप्रस में दोनों देशों के नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। साइप्रस ने भारत के साथ अपनी घनिष्ठता को देखते हुए पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। पीएम मोदी के साइप्रस दौरे में दोनों देशों के बीच कई मामलों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी बातचीत हुई। साइप्रस के साथ भारत ने रक्षा, व्यापार और निवेश संबंधी कई मुद्दों पर भी बात की। साइप्रस को यूपीआई से जोड़ने के लिए हुई बातचीत की पीएम मोदी ने तारीफ भी की। पीएम मोदी का साइप्रस दौरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होने वाला है। दरअसल भारत और साइप्रस के प्रधानमंत्री ने तुर्की द्वारा जबरन कब्जा की गई साइप्रस की जमीन पर भी चर्चा की, जिसमें दोनों देशों ने किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस दौरा बेहद कामयाब रहा और इससे भारत की वैश्विक साख को और मजबूती मिली है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में हाल ही में हुई भगदड़ की घटना को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಾಂತರಾಜ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 23 ಲಕ್ಷ ವಯೋವೃದ್ಧರದು ಮುದುಕರದು ಪೆನ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾರೆ. ಇವರು ಯಾಕೆ ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. राज्य सरकार प्रायोजित ಕೊಲೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು राज्य सरकार प्रायोजित ಕೊಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा, भगदड़ की त्रासदी के 13 दिन बाद भी कर्नाटक सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। वे केवल पुलिस अधिकारियों पर दोष मढ़ रहे हैं। हालांकि यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व को ही जवाबदेह ठहराना चाहिए। इसलिए हम मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। Even after 13 days of the stampede tragedy, the Karnataka government has not taken any responsibility
They are blaming only police officials here. But the High Court has also observed it is the political leadership which has to take responsibility. So we are demanding the resignation of Chief Minister Siddaramaiah. Sir, here in RCB incident, the tragedy where 11 people died, it is due to the irresponsible behavior of the state government, Chief Minister and Deputy Chief Minister. Because of their competition, this incident has taken place, this tragedy has taken place. The sole responsibility lies with the state government, with the Chief Minister and Deputy Chief Minister himself. Hence, we are demanding the resignation of Chief Minister. D.K. Shivkumar has criticized saying that you are doing politics on dead bodies. See, BJP is not interested in doing politics on dead bodies. But the people of Karnataka are asking that state government should own the responsibility. State government, Siddaramaiah and Deputy Chief Minister should take up the responsibility, moral responsibility and resign. We are not doing any politics here. Due to the internal competition, internal rift of CM and Deputy CM, this tragedy has taken place. Yes, very true. Several incidents have happened, but nowhere Chief Minister or Deputy Chief Minister have been responsible. But in this particular case, Chief Minister and Deputy Chief Minister are directly responsible. They created a situation in which people have died, whereas in other cases it was only accident. Suspensions take place only after a preliminary inquiry, after a proper procedure has been applied. No procedure has been applied. By suspending the officers, government is thinking they have brought an end to the entire stampede issue. Suspension is totally illegal, uncalled for. They shifted the blame from themselves to innocent police officers who have always been saying that program can be held, but after 2 days, after proper preparations are made. They did not heed when problem took place. Now they are blaming the police officers. आगामी रथ यात्रा के लिए 3 रथों का निर्माण तेजी से चल रहा है। मुख्य ढांचा, ऊपरी भाग और रथियों की सीटें पूरी हो चुकी है, जबकि परभादी और पोटोला का निर्माण कार्य चल रहा है। चांदी से मढ़े कलश स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आज छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 15वां स्थापना दिवस है। मैं इस अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस दिवस को मनाने के लिए आयोग ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों सहित राज्य भर के बच्चे भाग ले रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 15वां स्थापना दिवस है। मैं इसकी सभी को पहले बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इस उपलक्ष्य में आयोग यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से बच्चे भी आए हैं जो बाल गृह में पढ़ते हैं। और आयोग की अध्यक्ष हैं डॉक्टर वर्णिका शर्मा, जिन्होंने बहुत कम समय में 16 अप्रैल को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है और इतने कम समय में प्रदेश के 14 जिलों का दौरा करके और बाल अधिकार के क्षेत्र में और कैसे अच्छा काम हो सकता है उन्होंने नवाचार किया है। सार्थक, रक्षक जैसी योजना का शुभारंभ किया है, तो निश्चित रूप से इनकी अध्यक्षता में बाल संरक्षण आयोग और मजबूत होगा और हमारे प्रदेश के जो इस तरह के जिनको आवश्यकता है
बच्चे, उनके अधिकारों का संरक्षण हो पाएगा, उनका विकास हो पाएगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, भारतीय नागरिक भारत में ही रहेंगे और जो भारतीय नागरिक नहीं है उन्हें यहां से जाना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। विडंबना यह है कि ममता बनर्जी ने खुद टीएमसी के भीतर बंगाली नेतृत्व को दरकिनार कर दिया है। देखिए, भारत के जो नागरिक हैं वो भारत में रहेंगे, भारत के जो नागरिक नहीं है वो भारत के बाहर जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसको इशू करने के लिए कोशिश कर रही है, जबकि ममता बनर्जी ने खुद बंगालियों के पेट में, टीएमसी के बंगालियों के लीडरशिप के पेट में लात मारकर यहाँ से हिंदी भाषी यूसुफ पठान, आपका शत्रुघ्न सिन्हा, साकेत गोखले राज्यसभा में, सुष्मिता देव आसाम से, साकेत गोखले महाराष्ट्र से आते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों को, मैं एक दो नाम नहीं बोला, ऐसे बहुत सारे लोगों को जिनको ममता बनर्जी ने राज्यसभा या लोकसभा भेजा। तो कोई बंगाली है क्या? कोई बांग्ला बोल सकते हैं क्या? यूसुफ पठान बांग्ला बोल सकते हैं क्या? बोल ही नहीं सकते। कीर्ति आजाद बांग्ला नहीं बोल सकते। तो बंगालियों के पेट में लात ममता बनर्जी मार रही है। रविंद्रनाथ ठाकुर की घर तोड़ दिया गया बांग्लादेश में, तो उसके बारे में ममता बनर्जी की एक भी वर्ड, एक भी शब्द आई क्या? क्यों नहीं आ रही? ममता बनर्जी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। उनके लिए बंगाली नॉन बंगाली इशू नहीं है। वो तो बोलती थी कि बांग्ला में के ही चाय। क्या हुआ उसके बाद? बांग्ला में ने बांग्ला के महिलाओं को ही धोखा दे दिया, सब नॉन बंगालियों को एमपी बना दिया। यहाँ से अगर यूसुफ पठान को टिकट नहीं देके किसी बंगाली को देता तो ये बंगाली एमपी बनता। बंगाली एमपी का संख्या घट गया। पश्चिम बंगाल से ही तो बंगाली एमपी जीत सकता है, और आसाम से जीत सकता है, त्रिपुरा से जीत सकता है। तो हम अगर पूरे देश में देखें तो बंगाली की संख्या, बंगाली एमपी की संख्या राज्यसभा लोकसभा में जितना हो सकती है उसका संख्या घटाया किसने? बीजेपी ने तो नॉन बंगाली को नहीं जिताया। नॉन बंगाली को भेजा ममता बनर्जी ने बंगाली सांसदों की संख्या घटाने के लिए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले
अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया कहते हैं, इस अभियान की शुरुआत राहुल गांधी और हमारे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात से की थी। इसका लक्ष्य पूरे देश में संगठन का निर्माण करना और हमारी पार्टी को मजबूत करना है। कई साधारण कार्यकर्ता शिकायत करते थे कि उन्हें अवसर नहीं दिए गए, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा में यह संगठनात्मक अभियान शुरू किया गया है। इससे पार्टी को पूरी ताकत और शक्ति मिलेगी। देखो, गुजरात से इसकी शुरुआत करी गई है राहुल गांधी जी द्वारा और मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कि भाई हम पूरे देश में संगठन बनाए और अपनी पार्टी को मजबूत करें। जैसे जो एक सामान्य कार्यकर्ता है उनको बहुत सारी शिकायतें होती रहती थी कि भाई हमें मौका नहीं दिया जाता, तो उसी को देखते हुए जो संगठन अभियान चलाया है गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा में चलाया गया है और इसको बिल्कुल पार्टी को पूरी मजबूती के साथ ताकत मिलेगी। और आगे जो आम कार्यकर्ता है जो सोच रहे हैं कि भाई मुझे भी राजनीति करनी है और मुझे भी अपने लोकल मुद्दे उठाने हैं, समाज के मुद्दे उठाने हैं, उन हर इंसान को वो मौका मिलेगा। जो कार्यकर्ता योग्य होगा, जो मेहनती होगा, जो हर उस शोषित की आवाज़ उठाता है, जो लोकल मुद्दे उठाता है, जो हमेशा कांग्रेस के लिए आवाज़ उठाता है कि भाई हाँ गलत हो रहा है तो हम गलत के साथ खड़े हैं और कांग्रेस के साथ खड़े हैं। देखो, उनका संगठन अलग तरीके से काम करता है, हमारा संगठन है वो अभी अब बना रहे हैं तो हमारा देश हित में काम करेगा। बीजेपी कांग्रेस की राह पे चल रही है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होती थी जो पिछले 50-60 साल से राज किया है। बीजेपी तो अभी आई है और आप सब ने देखा भी होगा उनका जो पूरे देश के साथ रवैया पार्टी का, जो कोई भी आवाज़ उठती है उसी को दबाने का प्रयास किया जाता है। जी बिल्कुल, मैंने बताया कि जो मेहनती होगा, जो कार्यकर्ता होगा, मेहनती कार्यकर्ता हो उसको मौका मिलेगा, चाहे वो युवा है, चाहे वो हमारे बुजुर्ग है, चाहे महिला है। मुझे लगता है कि जो बाबा साहेब की मूर्ति का जो विवाद है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिस इंसान ने संविधान को लिखा है अगर न्यायपालिका में उसकी प्रतिमा लगाई जा रही है तो हमें सबको स्वागत करना चाहिए। हरियाणवी मॉडल शीतल की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। शीतल के पति ने ही चाकू से गोदकर शीतल की हत्या कर दी थी। ये जानकारी डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि 15 जून को मडलोडा के कामर थाने में एक लड़की ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन आहर गाँव गई थी और वापस नहीं लौटी। अगली सुबह खरखौदा से सूचना मिली कि नहर में एक लड़की का शव मिला है। जब परिजन और पुलिस पहुंची तो लड़की की पहचान शीतल के रूप में हुई, जो इलाके से लापता बताई गई थी। देखिए, 15 जून को हमारा थाना मतलोडा में सूचना दर्ज कराई थी एक लड़की ने कि उसकी बहन आहर गांव में गई थी और वो वापस नहीं आई, तो गुमशुदगी की एफआईआर उसकी दर्ज की गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खरखोदा से सूचना आई कि नहर में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, तो परिवार वाले पहुंचते हैं, पुलिस वहां पर पहुंचती है, तो उस लड़की की पहचान शीतल जो यहाँ से गुम हुई थी उसके रूप में होती है। और उसके बाद परिवार वालों ने बताया कि ये जो आरोपी है जो हमने पकड़ा है सुनील नाम के लड़के के साथ गई थी, तो क्योंकि सुनील पहले से नहर में हमें मिला था, जिंदा हालत में तैर के ये निकल गया था और कार इसकी नहर में गिरी थी, तो उसे शक हो गया कि हो सकता है इसने, क्योंकि डेड बॉडी पर हत्या के निशान थे, उसमें चाकू के निशान थे, तो उससे हत्या की संभावना लगी। तो घटना फिर इसके साथ जुड़ते देर नहीं लगी क्योंकि नहर में डेड बॉडी मिली, नहर से ही सुनील मिला था और सुनील के साथ वो गई थी। तो इस आधार पर हमने हमारी CIE 1 की टीम ने, क्योंकि एडमिट था पहले से, पार्क हॉस्पिटल से इसको अरेस्ट किया। तो सारी घटना का खुलासा हुआ कि ये 14 तारीख को आहर गांव के लिए गए थे, सुनील के साथ ये लड़की गई थी और वहाँ पर इसका कोई
शूट था जो हरियाणवी एल्बम में ये काम करती है, और अहर गांव में शूट के बाद जब रात 10 बजे के करीब ये वापस आते हैं तो रास्ते में इन दोनों का गाड़ी में ही झगड़ा हो जाता है किसी निजी बात को लेकर। इसके पास कोई कॉल आया लड़की के पास किसी लड़के का, और ये मना कर रहा था, तो इस बात पर झगड़ा हो गया उनका, और गाड़ी में पहले से चाकू इसने रखा हुआ था, तो चाकू से उस लड़की की इसने हत्या कर दी। और डेड बॉडी को छुपाने के लिए, सबूतों को छुपाने के लिए और एक भ्रमित करने के लिए कि ये इत्तेफाकिया घटना हो, उस नहर को वो लड़की की बॉडी सहित इसने नहर में गिरा दिया। और खुद ये तैराक था, तैरना इसको अच्छे से आता था, खुद ये निकल के तैर के बाहर निकल आया। देखो एग्जैक्टली तो पोस्टमार्टम में आएंगे, बाकी 6-7 बार इसने किए। हाँ, चाकू इसने रखा हुआ था, तो ये कहा जा सकता है कि पहले से इसकी प्लान। ये रास्ते में मतलोटे के आसपास, इसने बताया कि मतलोटे के आसपास इसने उसकी हत्या की थी। नहीं, गाड़ी में ही दिया और गाड़ी में ही लेके आ गया, और फिर खुरद-बुरद करने के लिए गाड़ी को नहर में गिरा दिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, केवल अपने परिवार के उत्थान के लिए काम करना और उसके लिए जाति आधारित संघर्ष को बढ़ावा देना, यही उनकी मानसिकता है। हमारे और उनके दृष्टिकोण में बुनियादी अंतर है। हम सभी जातियों को मान्यता देने, सम्मान देने और उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि उनका उद्देश्य केवल अपने परिवार को लाभ पहुँचाना है, भले ही इससे समुदाय के बीच संघर्ष हो। तकनीकी पहलू पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद कम से कम कांग्रेस पार्टी को तकनीकी पहलुओं को समझना चाहिए। जाति आधारित जनगणना केंद्र द्वारा अधिसूचित की जाती है, राज्य इसे आधिकारिक रूप से नहीं कर सकते। केवल अपने अपने परिवार का उत्थान और उसके लिए जातियों में घमासान, हमारी सोच और उनकी सोच में एक मूलभूत अंतर है। हम सभी जातियों की पहचान, उनका सम्मान और उनके उत्थान के लिए समर्पित हैं। ये अपने परिवार को सारा मिष्ठान, उसके लिए सब वर्गों में हो जाए घमासान, ये उससे ज्यादा प्रेरित है। ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट मैं कहना चाहूंगा, इतने लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद कम से कम कांग्रेस पार्टी को टेक्निकल इश्यूज समझने चाहिए। जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन केंद्र के द्वारा होता है, राज्य जातिगत जनगणना कर ही नहीं सकते, तो किस राज्य के नोटिफिकेशन को दिखा रहे हो? वो केवल सर्वे कर सकते हैं। सर्वे को नोटिफाई करने का प्रोसीजर अलग है, उसका स्टैच्यूटरी प्रोसीजर नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर है। जातिगत जनगणना केंद्र के द्वारा की जाती है, उसका स्टैच्यूटरी प्रोसीजर है, फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर है। और वैसे देखिए, ये स्वयं जिस तेलंगाना राज्य का उदाहरण दे रहे हैं, पहली बात तो वहां सर्वेक्षण हो रहा है, सेंसस नहीं, स्पष्ट समझना चाहिए। गणना नहीं हो रही है, सर्वे हो रहा है। दूसरा, जिस राज्य का उदाहरण दे रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री तो अभी बोल रहे हैं, उनका आज ही का बयान आया है कि पैसे की कमी हो गई है, कल्याणकारी योजनाओं में देने के लिए पैसा नहीं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये कांग्रेस की खटाखट योजना ने जो किया है। पहले हिमाचल प्रदेश में खटाखट सारा खजाना सफाचट, उसके बाद आई यही चीज हुई हरियाणा, उस कर्नाटक के में, हिमाचल के बाद खटाखट, वहां भी स्थिति हो गई खराब। अब सेम चीज तेलंगाना में आती जा रही है। यानी यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आती है, इनका खटाखट मॉडल देश के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि यह समग्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर नहीं विकास करते। हमारे राज्यों में यदि कल्याणकारी योजनाएं काम कर रही हैं, उसके साथ साथ राज्य में नए संसाधनों का भी संचय उसी दृष्टि से हो रहा है। इसलिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूं, जहां जहां कांग्रेस आई, वहां वहां आर्थिक दृष्टि से हो गई तबाही। और यह उदाहरण हिमाचल, कर्नाटक और उसके बाद तेलंगाना में दिखाई पड़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए 48 नए परिवहन सुरक्षा वाहनों को हरी झंडी दिखाई। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीए टीम को इजाजत। धन्यवाद।